Hello everyone, welcome to a new video. Your Prophet Bhai is in front of you again. I mean, what a week this is turning out to be, right? क्या मतलब extreme volatility का हफ्ता चल रहा है. I just thought I'll take a step back and it's a weekly expiry, first weekly expiry of June. So it's good to take a step back, think about what has gone right, what has gone wrong. I'm sure a lot of your portfolios must be struggling. लेकिन डोंट माइंड इट गाइस अभी ये वी आर बैक इनटू अ टाइम ऑफ अर्ली 2000 व्हेन मार्केट्स यूज्ड टू रिएक्ट very fast on political developments because that was the time, and today it looks like we are again back to the time of coalition politics. So before I quantify, इससे पहले कि मैं ये बताऊं मैं क्या आपको exactly कहना चाहता हूं, मैं सीधा facts और figures पे ही बात करूंगा. एंड सिंपल बात ये है कि इस हफ्ते में बाजार का टेक्सचर तो बदला ही है, which none of these so-called करोड़पति exit polls could call. सिंपल सेकेंडरी डेटा एनालिसिस अगर आप करते हो, जो मैंने किया था 19th में, इफ यू सीन दैट वीडियो, वी गॉट इट एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन. 290 289 मेरा नंबर था फॉर द एनडीए. वो वीडियो मैंने चैनल पे दोबारा शेयर किया. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर. लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग मी कि क्रेडिट लेने का इसमें क्या बात है. मैं आपको बताता हूँ. क्रेडिट इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि जब आप अकेले खड़े हो, 99% people are saying NDA will score about 350 and you are the only one, very few 1% people who are backing your data from the ground report जो मिल रही थी हम लोग को भी. और क्यों मैं इलेक्शंस ट्रैक करता हूँ? एग्जैक्टली इसी वजह से कि ग्राउंड रिपोर्ट मिल रही थी, मालूम था ये गड़बड़ है, इट्स नॉट गोना हैपन. एंड 2004 में मैंने बार बार आपको कहा था ऐसा ही हुआ था, एग्जैक्टली दिस. इनफैक्ट इट वाज वर्स देन दिस. 2004 17th May 2004 निफ्टी had मतलब the markets had crashed by almost I think 17% or something in one day. अभी तो आपने 7% का करेक्शन देखा है. 7% is, you can call it a crash. For us it's, जब तक बाजार 20% ना गिरे तब तक आपने क्रैश नहीं देखा है. ये कन्वेंशनल विजडम हमको ये बता. सो द प्रॉब्लम इज मार्केट्स आर सेंसिटिव टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. और ये बात मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा. It's a little longer video, so if you have time, you're having lunch, dinner, whatever time of the day you're watching, make sure you have taken your food and you can watch it. इसमें analysis है और निफ्टी का थोड़ा व्यू पॉइंट है. एंड आई एम टेलिंग यू, अ लॉट ऑफ फंड मैनेजर्स विल अगेन गेट इट रॉन्ग. मैं ये पहले ही बोल रहा हूँ, वापस गलती करेंगे बहुत लोग गुलाटी मार के, क्योंकि a lot of people don't understand this correlation between politics and economics and politics and stock markets. अभी अब तक वो जरूरी नहीं था. पिछले लास्ट 10 years से it was not required to be a political analyst. Secondary data इतना strong था कि we were 1% and we called it right. And today when we are right, we have to give credit where it is due. That yes, nobody was standing with us, but we were right. Exit polls were wrong. Business news channels were wrong. Bull market is intact, but macros of India have changed. Monday, Nifty goes up by 3%. Tuesday, Nifty falls by 7%. And Wednesday, which was yesterday, Nifty again goes up by 3 to 4%, whatever. This is not normal. Something has changed at the macro level. और वो मैं आपको बताता हूँ क्या बदला है. कोएलिशन पॉलिटिक्स के वजह से कोई भी सरकार जब अपने दम पे 272 का वो मैजिकल नंबर पार नहीं कर पाती, it does not have the freedom to take fast decisions. Most of the investors in our markets, whether it is foreign investors or it is retail investors or it is promoters, जो कंपनी के मालिक हैं, promoters, significant portion promoters का है, या म्यूचुअल फंड वाले, एफआईआई, डीआईआई, रिटेल इन्वेस्टर और कंपनी के प्रमोटर, यही चार धड़े हैं जो अपना मार्केट बनाते हैं. ये चारों के टाइमिंग एंट्री एग्जिट के अलग अलग हो सकते हैं, बट देयर इज वन कॉमन फैक्टर विच एवरीबडी लाइक, which is exactly what the, yeah, I'm sorry for the interruption if at all you found any interruption. I was saying, मैं repeat करता हूँ, ये चारों धड़े, एफ आई आईज,
DIIs, retail investors and promoters. ये चारों participants है. So if there is one common factor what they love about the markets, that common factor was stability at the political macro level. वही मार्केट ने आपसे छीन लिया. और वो स्टेबिलिटी 10 साल से क्यों थी? बिकॉज बीजेपी ऑलवेज गॉट अबव 272. 2014 में बीजेपी अलोन गॉट 282. 2019 में दे गॉट अलोन 303. एनडीए दोनों में उसके साथ खड़ा. अब बदल गया. पहला फैक्टर जो निफ्टी से रिलेटेड है, निफ्टी एट 21 प्राइस टू अर्निंग रेशियोज इज एक्सपेंसिव कंपेयर्ड टू ग्लोबल मार्केट्स. अब आप में से कोई आर्ग्यू करेगा कि वी हैव ऑलवेज बीन एक्सपेंसिव. दैट्स करेक्ट. टुडे इफ यू लुक एट द वर्ल्ड मार्केट्स, अगर मैं एक फॉरेन इन्वेस्टर, मेरे पास जापान का ऑप्शन है जिसका पीई प्राइस टू अर्निंग 23 होगा. इंडिया का ऑप्शन है जो अभी करेक्शन के बाद उसका प्राइस टू अर्निंग 21 22 के आसपास है. इट इज एक्सपेंसिव. यूएस का डाउ जोन्स है जिसका प्राइस टू अर्निंग 16 17 18 के आसपास. साउथ कोरिया है जिसका प्राइस टू अर्न, साउथ कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग, ऑल दीज, नॉट इवन चाइना, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट चाइना का तो बहुत ही अंडर वैल्यूड है. बट अगर मैं चाइना की बात ना भी करूं, देयर आर बेटर मार्केट्स वेयर द पी रेशियो ऑफ द एंटायर इंडेक्स इज 9 10 11 इन एशिया. तो फॉर अ फॉरेन इन्वेस्टर जिसको आपके देश की धरती से कोई ज्यादा लगाव नहीं है, उसके पास पैसा है, उसको पैसे पे पैसा कमाना है. सिंपल कैपिटलिज्म का रूल है, पैसा लो पैसा दो. फॉरेन इन्वेस्टर जब देखता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो इंडिया में एक बहुत बड़ा विनिंग फैक्टर थी, ट्रम्प कार्ड थी, वो अभी नहीं है, ये अब तक दिख नहीं रही है, तो व्हाट विल द एफआईएस डू? सबसे पहले वो अपना हाथ खींचे. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे डिड ऑन ट्यूसडे. 12-13 हजार करोड़ की सेलिंग एक दिन में आई अक्रॉस द बोर्ड. व्हेन वाज द लास्ट टाइम you saw Reliance fall 7%, HDFC Bank fall 6-7%, Nifty fall 7%. तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कोविड में मार्केट से जुड़े हैं. इनफैक्ट आज 7 करोड़ एक्टिव मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, उसमें से 4-5 करोड़ आप लोग सब यंग हो. आप लोग कोविड के बाद जुड़े. आप लोगों ने मार्केट साइकिल्स, स्पेशली पॉलिटिकल कनेक्शन टू द मार्केट साइकिल्स, आई एम सॉरी टू से बट आप लोग ने नहीं देखा है. You will now have to add another chapter to your charts. Bullish engulfing pattern, bearish whatever pattern. I don't follow charts. I have my different analysis. But जितने आपके चार्ट पैटर्न है ना बॉस, उसमें एक बहुत तगड़ा मैक्रो फैक्टर आपको ऐड करना पड़ेगा, इसलिए मैं अपने चैनल पे भी वो कवर कर रहा हूँ. वो है पॉलिटिकल पैटर्न. लेट मी शो यू समथिंग. क्योंकि जून जुलाई अगस्त पॉलिटिक्स जैसे जैसे इंडिया में मैक्रो लेवल पे चेंज होगी और जो डेटा आएगा, जीडीपी ग्रोथ तो आपको मिलती रहेगी. लेकिन अगर कोएलिशन पॉलिटिक्स है, उसमें एनडीए की सरकार है, ये बीजेपी की सरकार नहीं है. दिस इज एनडीए 3.2. दिस इज नॉट मोदी 3.2. मोदी विल have to take all allies together with important decisions, and he is not used to doing that. He used to take decisions as a one man show. Decision जल्दी हो जाते थे, लोग बात मानते थे, रिफॉर्म्स आ जाते थे. अब भूल जाइए कि आप बचे हुए रिफॉर्म्स करेंगे. और फॉरेन इन्वेस्टर्स की नजर उसी चीज पे पड़ी हुई है कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, पावर सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया, ये सब चलेंगे. लेकिन क्या दूसरे पार्टीज को साथ में लेके वो ये कर पाएंगे डिसीजंस या नहीं? दैट्स द $3.75 ट्रिलियन क्वेश्चन जो हमारे जीडीपी का साइज है. दैट्स द $3.75 ट्रिलियन क्वेश्चन. नाउ हैव अ लुक एट दिस. ये एनालॉजी मैं आपसे शेयर करता हूँ. लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू गाइस. ओके, ये देखिए. आई होप यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन. yesterday the NDA had a meeting, right? NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो 292 सीट्स जीती है, उनकी मीटिंग थी कल. ये सारे जो आप देख रहे हो सब एनडीए के पार्टनर्स हैं. ध्यान से देखो, सब जीत के आए हैं. मोदी साहब इधर बीच में. लास्ट व्हेन आई डोंट रिमेम्बर द लास्ट टाइम इन द 10 years जब उन्होंने पूरे कैबिनेट को बुला के मीटिंग की, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं थी. बीजेपी अकेले फैसले लेती थी, एनडीए हाँ जी हाँ जी. कॉर्पोरेट्स में होता है ना, यस मैम, यस सर, यस सर, यस सर करता. अभी डिसीजन लेने के पहले भाई साहब को ये सब का जो बीजेपी वाले हैं वो तो यस मैन बनेंगे,
ये बाकी सबका अप्रूवल लेना पड़ेगा. इन प्रिंसिपल देयर आर टू पीपल हियर हु कैन स्पॉइल द शो और हु कैन राइड द टाइड. हु आर दीज टू पीपल? सबसे पहले द मैन ऑफ द साउथ, चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी. इस आदमी की एक हिस्ट्री रही है. बाय द वे, चंद्रबाबू नायडू, तेलुगु देशम, टीडीपी हैज वन 16 सीट्स आउट ऑफ 292. 16 सीट्स इनके हैं. ये आंध्र प्रदेश के अभी चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं. इनकी पार्टी स्टेट इलेक्शन भी जीती है आंध्र में, और सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब अभी यूनियन इलेक्शन में 16 सीट जीत के एकदम मोदी साहब के लेफ्ट में आके बैठ गए. जहां एक जमाने में राजनाथ सिंह या अमित शाह बैठे थे, वो साइड में बैठे, ये लेफ्ट में आके बैठ गया सीधा. ये आदमी 1990s में ही वॉज रिस्पॉन्सिबल टू मेक हैदराबाद द आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया. इस आदमी ने सबसे पहले एफडीआई इन्वेस्टमेंट इंडिया में राजीव गांधी के बाद अगर किसी ने लाया तो वो ये आदमी. चंद्रबाबू नायडू नोज व्हाट इज ग्रोथ, व्हाट इज डेवलपमेंट. आईटी सेक्टर को उजागर करने वाला, इन शॉर्ट हैदराबाद को साइबराबाद बनाने वाला ये आदमी था. और हम देखते थे इसको 98 99 में. वी यूज्ड टू बी प्राउड दैट वी हैव सच politicians who are working hard for the country, right? या अब ये हो गया एक. इसकी 16 सीटें हैं माइंड यू, ओनली 16, बट ही इज द नंबर वन किंग मेकर. अगर ये 16 सीटें हटा के दूसरे साइड में चला जाए तो एनडीए की सीट्स 292 माइनस 16 हो जाएगी, विच इज 276, विच इज वेरी ब्रिटल. ये मोदी सरकार नहीं है स्ट्रॉन्ग. इनको डीमोनेटाइजेशन या जीएसटी या ऐसा कुछ करने के पहले सबका साथ सबका विकास अभी खुद में करना पड़ेगा पहले. एनीवे anyway, और इनके बगल में जो बैठे हैं, जो अभी हाथ आगे करके कुछ मांगेंगे जरूर, ये है पलटू राम. सबसे बड़ा पलटू राम पॉलिटिक्स का है नीतीश कुमार. एक मिनट, हाँ ये देखिए हाथ आगे आ गया ना. ये है, आप जानते होंगे, नीतीश कुमार, बिहार के चीफ मिनिस्टर, और 12 सीट्स के साथ जनता दल यूनाइटेड के ये लीडर हैं. ही वॉज द गाय जिन्होंने इंडिया ब्लॉक की आइडिया कांग्रेस पार्टी को दी थी. ही स्टार्टेड द इंडिया ब्लॉक, सबको जमा किया, बनाया, और खुद पलटी मार के निकल के एनडीए में आ गया. ये आदमी पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा पलटू रहा. इसको देख के अ कमेलियन, जो गिरगिट होता है ना, वो बोलता है भाई तू मेरा भी बाप है रंग बदलने में, यू आर माई मास्टर इन चेंजिंग कलर्स. और ये आदमी की 12 सीटें मोदी साहब के साथ 272, मतलब 292 में ऐड किए. नाउ दिस गाय इज सो ब्रूटल, he can leave the government. He has done it. Both of these guys have left NDA in the past. They have broken governments in the past. अगर ये दोनों एनडीए से अपना हाथ खींच ले तो 28 सीट्स माइनस हो जाएंगी. नोबडी वांट्स दैट. जिस दिन सुबह सुबह उठ के 9 बजे, किसी को नहीं, भगवान करे कभी ऐसी खबर ना आए, बट जिस दिन सुबह 9 बजे बाजार चालू, बाजार में खबर आई 9 या 10 बजे कि इन दोनों में से एक भी आदमी समर्थन वापस ले रहा है, मार्केट उसी वक्त, उसी दिन 5% गिरेगा निफ्टी. अब समझ में आया कोरिलेशन? हमारे होम मिनिस्टर का डायलॉग था ना, आप क्रोनोलॉजी समझिए, अभी सब उन पे आएगा. अब आपको सरकार कैसे चलाते थे वाजपेयी साहब, कैसे इंडिया में कोएलिशन चलानी है, अब वो दौर वापस आ गया है. रिफॉर्म्स का दौर शायद कुछ टाइम के लिए टल गया होगा, ऐसा लग रहा. और ये नीतीश कुमार, इसकी शक्ल देखिए, दिस गाय इज स्टिल रिलायबल. चंद्रबाबू नायडू नोज, इसको बहुत मुश्किल के बाद 10 साल के बाद ये सत्ता में वापस आया है. नीतीश कुमार पिछले 25 साल से बिहार में रहा है, पावर में रहा है, चीफ मिनिस्टर रहा है, और जिसकी सरकार बनती थी उसके साथ निकल लेता था पतली गली से. सो अगर नीतीश कुमार 12 सीट वाला, लेकिन ये दोनों किंग मेकर है. दे आर नॉट द किंग्स, दे आर द किंग मेकर. 28 सीट्स, 16 प्लस 12 टुगेदर, दोनों अगर निकल गए तो 28 माइनस हो गए तो कितना हो गया, 264. मतलब एनडीए विल बी शॉर्ट ऑफ मेजोरिटी, और उसी दिन बाजार क्रैक करेगा. भगवान ना करे ऐसा कभी. सिनेरियो नंबर 2, नीतीश कुमार अकेला निकल गया, विच ही इज क्वाइट केपेबल ऑफ, तो 12 सीट कम हो जाएंगी. 292 माइनस 12, 280. उसमें भी बाजार 2-3% क्रैक करेगा. क्यों? 272 तो मार्क है सिंपल मेजोरिटी. 272 के जितना ऊपर आप चढ़ते हो साइकोलॉजिकली, इफ यू आर अबाउट 300 एज अ गठबंधन, द मार्केट्स आर ओके.
कि उसमें से 25-30 सीट है, कोई निकल भी गया तो अपने को फर्क नहीं पड़ता। बट वेन यू आर 292, यू आर एट अ वेरी वेरी ब्रिटल पोजिशन। अब ये दोनों, जैसे आप नीतीश बाबू का हाथ देख रहे हो ना भाई, वो हाथ जो मांग रहा है आगे, ये दोनों प्लम पोजिशंस सरकार में मांगेंगे। Both of these guys will ask for heavy ministries. It could be infrastructure, it could be highways, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जो अभी गडकरी साहब की मिनिस्ट्री। मेरा ये तजुर्बा कहता है कि दोनों में से ये दोनों तो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन अपने अपने पार्टी के लिए। भाई सिंपल ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है ना, मैं एनडीए को सपोर्ट क्यों करूं, व्हाट्स इन फॉर मी, मेरे दो मिनिस्टर बना दो। चंद्रा बाबू ने तो वो डिमांड रखा ही होगा, दो तीन, दोनों के पार्टी के 2 या 3 बड़े बड़े मिनिस्टर बन सकते हैं मोदी कैबिनेट में, जो बीजेपी के नहीं होंगे, अलायंस पार्टनर्स के होंगे। यही होता है गिव एंड टेक। मिनिस्टर बन गए, अगर स्पीकर ऑफ द हाउस इनका बन जाएगा, मिनिस्टर इनका बन जाएगा। अब मान लो नीतीश कुमार को जो भी मिनिस्ट्री जाएगी, आप लिख के ले लो, वो वाले स्टॉक थोड़ा प्रेशर में आएंगे, क्योंकि ये आदमी का कोई भरोसा नहीं। नीतीश कुमार, जेडीयू के जो भी मिनिस्टर, अगर पावर मिनिस्ट्री, आई होप दे आर स्मार्ट इनफ, Prime Minister and his colleagues are smart enough to realize all this. I'm sure they are not dumb. But कोई तो मिनिस्ट्री देंगे ना उसको, जहां वो स्टॉक आए जो नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, जदयू, जेडीयू को मिला। समझ लो मार्केट को एक और खतरा। अब मार्केट खतरे की घंटी आपको बार बार देगा, रोज देगा, हर हफ्ते देगा, हर एक्सपायरी पे देगा वो। और आप देखोगे एवरी थर्सडे जो वीकली एक्सपायरी एफएनओ की, वो बहुत ब्रूटल होने वाली है, मेरे को लगता है। अब जो ये ट्रेडर्स है ना, आप लोग कमर कस लो बॉस। अभी आपका फास्ट मनी और सिंपल मनी कमाने का दिन चला गया, खत्म, टाटा टाटा बाय बाय। अब आपको करना है काम खटाखट खटाखट खटाखट, दिमाग लगा के, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ टू मेक मनी गाइस। नोबडी वांट्स अ री इलेक्शन। बहुत पैसे खर्चे होंगे हमारे टैक्स पेयर्स के, तो वो तो ऑप्शन है नहीं। तो दोनों की मजबूरी है कि इन दोनों को पकड़ के सरकार चलाओ। नीतीश कुमार ने बोल दिया है कि आप जाके क्लेम फॉर्म कीजिए, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और ये उनके दो किंग मेकर। ये बहुत आइकॉनिक इमेज आप देख रहे हो, द ऑल ऑफ द किंग्स मैन। और सीधा देखो, कोई इनके लेफ्ट में होता नहीं था, सीधा ये दोनों, क्योंकि दे हैव वन द सीट्स, दे हैव 28 सीट्स। आज देखो हमारे देश का सौभाग्य या दुर्भाग्य जो भी, 28 सीटें 272 पे भारी पड़ रही है। 28 सीट्स आर हेवियर देन 241 which बीजेपी गॉट ऑन इट्स ओन, बिकॉज अगर ये दोनों बाहर चले जाए, सरकार गई, खत्म, टाटा बाय बाय हो जाए। इस आदमी की स्माइल देखो आप गाइस, आई एम सॉरी, आई एम पुटिंग, जो लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन समझते हैं, आप देखो, ये जीता जागता पॉलिटिशियन है, ये किसी का नहीं है। ये आदमी सबका है और ये आदमी किसी का सगा नहीं है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं, ऐसा आदमी है। और सब बात करते, दुनिया जहान जानती है, एवरीबडी नोज अबाउट। एनीवे, सो एंड दीज आर द अदर पीपल। ये हैं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे साहब। ये भी 6-7 सीटें आई होंगी, ये भी एनडीए में, ये भी वल्नरेबल है। ये आदमी कुमार स्वामी, जेडीएस का, बाप रे बाप, इसको भी साथ में रखा है। ये कर्नाटक वाला है, ये भी एनडीए में। एनडीए हैज बिकम लाइक, क्या बोलते हैं उसको, क्राउन ऑफ थॉर्न्स। एक ऐसा गुलाब है जिसमें कांटे ही कांटे हैं, कहीं भी हाथ लगोगे आपको खून निकलने वाला है, जहां हाथ लगाया खून निकले। और ये तो आप जानते हो, होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर अमित शाह, होम मिनिस्टर, ये चिराग पासवान का लड़का है इधर, ये हमारे बीजेपी के हेड हैं फिलहाल, जेपी नड्डा। और ये सब बहुत स्ट्रेटेजिकली पोजिशन लोग हैं। बट अगर आपको एक स्क्रीनशॉट टेक अवे लेके जाना है ना, टेक दिस स्क्रीनशॉट, लुक एट द प्राइम मिनिस्टर्स फेस हियर। First time his body language is so profoundly down. And I have to cover this, guys. Why? Because FIIs, I think ये बहुत symbolic image मैं आपको दिखा रहा हूँ। FIIs will be disappointed कि अगर, अब पहले के जमाने में भी यही होता था, जब वाजपेयी साहब कुछ अच्छा कदम उठाना चाहते थे, सबका अप्रूवल लेना पड़ता था, सबका साथ, सबका विकास। बोला था ना आप ही ने, देखो आप ही के ऊपर आ गया, क्योंकि आप greedy और अहंकारी, you became ruthless, you were not respecting political parties, इसके लिए। वरना प्राइम मिनिस्टर मोदी से बड़ा ब्रांड इंडिया में कौन है? देयर इज नॉट
एनीबडी, हमने ही बनाया उनको ब्रांड, बट कंज्यूमर्स नो कि ब्रांड को कब नीचे गिराना है, और टैक्स पेयर्स को तो अच्छी तरह पता है। एक बात हमारे लिए बहुत अच्छी होगी गाइस ये सब चक्कर में, वन थिंग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज आई थिंक अ वेरी सिंबॉलिक मोमेंट व्हिच आई एम शोइंग, यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। I think one thing is going to pan out really well, which is good for all taxpayers and all stock market investors of the country. Now, no party will give you trouble as an Indian citizen, क्योंकि कोई भी रूलिंग पार्टी कुछ भी कदम उठाने जाएगी, अच्छा बुरा, इन्होंने बुरे कदम भी उठाए हैं बाय द वे, तो उनको दूसरों का सपोर्ट लगेगा, और ऑपोजिशन के पास अभी नंबर्स है, वो पास नहीं होने देंगे। 232 इज द इंडिया ब्लॉक। अब एक ही चीज अच्छी हुई है कि पब्लिक ने उठा के ऑपोजिशन को पार्लियामेंट में भेज दिया कि जाओ भाई तुम लोग थोड़ा कुछ करो मेहनत, ऐसे कैसे तुम, डेमोक्रेसी में एक पार्टी कोई, दिस इज नॉट डिक्टेटरशिप ना, तो आपको जो भी पास करना है आपको सबसे पास करना पड़ेगा। और उस चक्कर में एफ आई आई नेगेटिव हो जाते हैं। अभी मैंने न्यूज देखी, नाउ कमिंग टू द मार्केट न्यूज, बहुत सारे लोग आईपीओ लाना चाहते थे, दे हैव डिलेड देयर आईपीओ, दिस इज द फर्स्ट रेड सिग्नल फॉर द मार्केट्स। आईपीओ प्राइमरी मार्केट डिले हो गया, एफ आई फॉरेन कंपनी थी वो, फर्स्ट रेड सिग्नल। सेकंड रेड सिग्नल, एफ आई आर ऑलरेडी स्टार्टिंग टू टेक बेरिश पोजिशंस, सेकंड रेड सिग्नल। थर्ड रेड सिग्नल, अपने डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड वाले भी अभी थोड़ा घबर रहे हैं, क्योंकि वो तो हमेशा झटका खाते हैं, लेकिन उनके पास हर महीने 20,000 करोड़ का एसआईपी आ रहा है, तो वो उनको मार्केट में लगाना है, शायद मार्केट उसके वजह से बच भी जाए। बट माय फाइनल पॉइंट टू यू इज, निफ्टी का मेरा बहुत पुराना सपोर्ट है, जो मैं होप करता था कि ना आए, वो शायद अब 1-2 महीने में आ जाएगा, बजट के शायद पहले ही आ जाए। 20,500 ऑन द निफ्टी is a very strong support. If for whatever reason, this time I am not saying markets will crash, because this is going to be extremely volatile. For whatever reason, if Nifty comes to 20,500 before 1st of July, then that support agar toota, then we are back into 18,000 zones. Nobody wants that. क्या ट्रिगर्स हैं बाजार के लिए? आरबीआई की मीटिंग है 7 जून, फ्राइडे, यानी कल। आरबीआई का वो मॉनेटरी पॉलिसी का वो जो करते हैं हर 2 महीने में करते हैं, वो मार्केट का पहला ट्रिगर। सेकेंड ट्रिगर है यूएस फेड की मीटिंग होगी, एग्जैक्ट डेट आपको भी चेक करना पड़ेगा, वो सेकेंड मेजर ट्रिगर वहां क्या हो। देन लोकली ये सरकार बनेगी नहीं बनेगी, 8 जून को ऐसा बताया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर जाके शपथ ले लेंगे, शपथ तो वो ले लेंगे, लेकिन उसके बाद एक आध हफ्ते बाद दे विल बी रिक्वायर्ड टू प्रूव देयर मेजोरिटी इन द लोकसभा, उसमें वापस 543 सीट्स में वोटिंग होती है, उसमें उनको 272 का नंबर बाय वोटिंग प्रूव करना पड़ेगा कि हु ऑल आर इन फॉर मोदी गवर्नमेंट, प्रेस यस और नो। तो सारे जो जीत के आए हैं सांसद, उनको यस दबाना पड़ेगा। वहां पे भी बहुत सांसद गेम करते हैं, क्रॉस वोटिंग होती है, लोग वोट नहीं करते, गेम हो उसमें तो बहुत बड़ा गेम हो सकता है बॉस। Market doesn't like uncertainty, and we have entered an era of uncertainty. That's exactly what markets don't want. They don't like it. They have never wanted it. Nobody expected this in India, and 2024 has given you this kind of झटका, और वो झटका किसी को नहीं चाहिए था, लेकिन हमको मिला। अब इसी के साथ जीना पड़ेगा, जीना यहाँ मरना यहाँ, मार्केट वही है हमारा। लेकिन देर इज अ वे टू डील विद इट, डोंट वरी, मैं हूं ना यार आपके साथ, आप टेंशन काहे ले रहे हो? आप सिर्फ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करो, किसी की एडवाइस मत सुनो, सबकी एक बार सुन के सुनो, सबकी करो। अब दिस इज व्हाट आई फॉलो, मैं कान खुले रखता हूँ, आंखें खुली रखता हूँ, सुनता हूँ, डेटा गैदर करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, और मेरा जो कन्विक्शन है वो कन्विक्शन पे स्टिक करके रहता हूँ, चाहे कोई बोले लेना है नहीं लेना है। I will never buy Adani stocks. I never cover those stocks because they are politically connected, and you saw what happened. सबसे ज्यादा पिटाई उनकी होती है, मार्केट ऊपर चढ़ता है, सबसे ज्यादा ऊपर भी वही चढ़ते हैं। इस क्रॉस फायर में मुझे तो नहीं फंसना है बाबा, आई एम नॉट अ हेवी रिस्क इन्वेस्टर। और जो पॉइंट मैं आपको फाइनली कह रहा था वो खत्म कर देता हूँ।
20,500 का लेवल है निफ्टी पे, जो मेरा सपोर्ट है वो टूटना तो नहीं चाहिए, लेकिन फाइनल नेल इन द कॉफिन सरकार बनी अगर, चेक। लोकसभा में मेजोरिटी प्रूव हुई, चेक। थर्ड, आपने फाइनेंस मिनिस्टर किसको बनाया? अगर पीयूष गोयल फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं, दैट्स अ बिग बूस्ट फॉर द मार्केट. Nobody wants Nirmala Sitharaman. That's the only positive I see. Piyush Goyal has won from Mumbai North constituency, which was the safest seat for the BJP. वो आदमी अगर फाइनेंस मिनिस्टर बना तो उतना भरोसा मुझे है, लुकिंग एट माय पास्ट एक्सपीरियंस एंड ट्रैक रिकॉर्ड, कि वो मार्केट को कुछ ना कुछ करके बाजार वालों के हित की बात तो करेगा वो आदमी. ही इज सेंसिबल, ही कम्स विद अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी बैकग्राउंड, एडुकेटेड, नोज द मार्केट्स, बिन देयर डन दैट. पीयूष गोयल. वो अगर नहीं बना फाइनेंस मिनिस्टर, कोई और बना, तो फिर देखना पड़ेगा बाजार कैसे रिएक्ट करता है, बिकॉज वी डोंट. फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनता है, एक और ट्रिगर. और फाइनल ट्रिगर है बजट. बजट के हफ्ता 10 दिन पहले, यूजुअली जब ये 5 साल में एक बार बजट होता है, इलेक्शन के बाद वाला बजट होता है जुलाई में, 1 जुलाई. एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बजट. इफ यू टेक अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ऑल पास्ट जुलाई बजट्स, प्री बजट में मार्केट में या तो भारी रैली आती है या भारी गिरावट. तो जून का सीरीज तो आपका बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाला होने वाला है. इट्स गोना बी बल्ले बल्ले फॉर ऑप्शन राइटर्स, लुक्स लाइक. बट गाइस, प्लीज एक्सरसाइज कॉशन. अगर आप ट्रेडर नहीं है तो आग के साथ मत खेलिए. यू प्लेइंग विद फायर, डोंट प्ले विद फायर. अगर आप SIP इन्वेस्टर हैं, आराम से सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी कर रहे हो आप. दैट्स द बेस्ट स्ट्रैटेजी. Let me know how did you find this video, guys. I'll see you in the next video very soon. Jai Hind and keep profiting.